Namaskar and a very good afternoon to all of you. I, Monica, on behalf of the Academics for Nation, would like to welcome you all in our session on the emergency. And today we are in conversation with our esteemed guest, Professor Anand Kumar. We welcome you, sir. We Thank you. also, we also have with us Professor Anil Soumitra, who is the Regional Director of Indian Institute of Mass Communication, Amravati campus. He has done his PhD from Barkatullah University, Bhopal. He has curated a very famous conclave, Media Chaupal, for almost a decade through his forum, Spandan, based in Bhopal. He also has various articles and works to his credit. We welcome you, sir. I would also like to welcome our co-host for today, Dr. Arun Kumar, who teaches in Lakshmibai College of Delhi University, and we together look forward to an engaging discussion on 1975 emergency and its various aspects. Briefly talking about this Forum of Academics for Nation, it is an initiative to engage in scholarly activities. We aim to create a dynamic, productive, and pragmatic intellectual landscape in the tradition of best academic standards and practices. Before moving forward with our session, let me introduce you all to our esteemed guest for today, Professor Anand Kumar. Professor Anand Kumar is a retired professor of sociology at JNU. Professor Kumar has a career spanning for around 5 decades. Besides being a sociologist, he is also regarded as one of the finest political thinkers, a respected commentator, and having a distinguished career in political activism. Professor Kumar has studied at Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University, and University of Chicago. In Chicago, he has served as the president of the Foreign Students Association. He has also been the student of JNU in the 1970s and was part of the student collective called Free Thinkers at JNU. Today, we will get to know about his experiences of being part of the JP movement during the emergency from 1975 to 1977. Besides this, during his tenure as the JNU faculty, he has served as the president of the Jawaharlal Nehru University Teachers Association. He has also served in the Federation of Central Teachers Association. He has been a recipient of academic honors from ICCR, DAD, Nehru Fulbright, and also served as visiting professor in Germany, Austria, and the United States. Some of his works include State and Society in India, Nation Building in India, India Chronic Poverty Report, Quest for Participatory Democracy, Tibet's Source Book, Understanding Globalization, Emerging India, and many more. We welcome you, sir, and it's an honor to have you with us today. As we all know that this emergency... Thank you so much. Thank you, sir. As we all know that this emergency is considered to be the darkest period in Indian democracy, and to know about its different facets, let us begin this discussion, and for which I would like to invite Professor Anil Soumitra to carry forward this discussion with Professor Anand Kumar. Over to you, sir. Thank you, Monica और अरुण कुमार जी. आज हम सब लोगों के साथ प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, जिनकी एक पृष्ठभूमि आपने परिचय बताया ही है, जो न सिर्फ एक प्राध्यापक के रूप में, एक आइडियोलॉग के रूप में, एक चिंतक के रूप में, बल्कि एक आप विद्यार्थियों के भी अगुवा रहे हैं छात्र जीवन में. और बाद में कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि आपने विद्यार्थियों को भी नेतृत्व दिया, उनकी भी अगुवाई की, और बाद में चलकर आपने शिक्षकों के संगठन को भी, शिक्षकों को भी एक नेतृत्व दिया, और जो संघर्ष के विषय रहते हैं तो छात्रों के साथ भी और विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ भी आपने उस संघर्ष को गति दी है. जो आज का विषय है जिस पर प्रोफेसर आनंद कुमार जी का विचार और उनसे चर्चा हम लोग करने वाले हैं, आपातकाल का विषय है. हम सब जानते हैं, आपने मोनिका जी ने जिक्र किया है कि आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में, दुष्काल के रूप में हम सब लोग उसको जानते हैं, उसका विमर्श करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं. हम लोग में से सर को छोड़कर हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, या उस समय जन्म हुआ भी तो हमको याद नहीं उस समय की घटनाएं.
जो पीड़ा कष्ट या जो लोकतंत्र पर एक प्रकार से कुठाराघात हुआ, उन सब चीजों का हमको न उस समय भान था। हम बाद में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक जाहिर सी बात जो मन में आज की पीढ़ी को भी जानना है, जो विद्यार्थी हैं उनको भी, नौजवान हैं उनको भी, कि उस आपातकाल के पीछे उसकी पृष्ठभूमि में उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, परिदृश्य है, उसमें विचारधाराओं का, उसमें समाज, उसका क्या समाज शास्त्र है, उसका क्या राजनीति शास्त्र है, उसकी राजनीति को, उसके समाज के संदर्भ में उसके महत्व को हम फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ एक अर्थ का विज्ञान भी, अर्थशास्त्र भी जुड़ता होगा। तो हमको आज डॉक्टर आनंद कुमार जी के साथ इस बात पर चर्चा करनी है, उनसे समझना है कि आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो पूर्व पीठिका है, उसमें समाजशास्त्र उसका क्या था, उसमें उसका राजनीति शास्त्र क्या था, उसमें जो उस समय की जो सत्तासीन पार्टी रही, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या थी, एक प्रतिस्पर्धा, एक आपस के जो दांव पेच होते हैं, क्या उसके कारण देश को मानवाधिकारों से, नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया, या उसकी कोई और इनसाइड स्टोरी है जिसको हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हम बातचीत की शुरुआत यहाँ से करें कि आनंद कुमार जी से हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप उस आंदोलन के एक कार्यकर्ता की तरह, एक अगुआ की तरह आप रहे, तो आप और बाद में आपने उसके बौद्धिक और जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने विश्लेषण किया, तो आप उसके समाज शास्त्र को, राजनीति शास्त्र को हम सब लोगों के बीच में थोड़ा साझा करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने और मोनिका जी ने जो आज की बातचीत का संदर्भ है और उसकी महत्ता है और गंभीरता है, उसको सामने रख करके मेरा काम आसान किया है। आपातकाल भारतीय संविधान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अंदरूनी या बाहरी कारणों से अगर राष्ट्र पर संकट आ जाए, राष्ट्र का संचालन रुक जाए और राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ जाए, तो कुछ बुनियादी अधिकारों का स्थगन करते हुए ढेर सारी ताकतें राज्य सत्ता और उसमें भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथों में दे दी जाती है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था जैसी है, ऐसी दुनिया के अधिकांश संविधानों में, क्योंकि किसी भी देश को अंदर या बाहर से खतरे हो सकते हैं, अराजक तत्वों द्वारा, अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा और सामाजिक तत्वों द्वारा, विदेशी ताकतों के इशारे पर भी देश के अंदर कुछ खुराफात, उत्पात, बगावत का माहौल बन सकता है। सेना भी गड़बड़ कर सकती है, विरोधी दल भी गड़बड़ कर सकते हैं, और सरकार में बैठे लोग भी कभी कभी संविधान की कसम के बावजूद राष्ट्र विरोधी हरकतों में पड़ सकते हैं। ऐसा ही प्रावधान आज से कोई 46 साल पहले 1974-75 के दौर में, 1975 26 जून को देश पर लागू किया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनका लोकसभा में प्रचंड बहुमत था, और उस समय देश की प्रादेशिक व्यवस्था में भी इंदिरा गांधी जी की पार्टी का ही वर्चस्व था। कुल 2 राज्यों को, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर के, हर प्रादेशिक सरकार इंदिरा जी के समर्थकों की सरकार थी, इंदिरा जी की पार्टी की सरकार। लेकिन आपातकाल लागू करके इंदिरा जी ने ये देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है और हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि विरोधी दलों का एक गठबंधन देश की सरकार पलटने के लिए उतावला है, और उसमें उन्होंने सेना और पुलिस को भी बगावत के लिए उकसाया है। लेकिन ये अस्थायी संकट है, आप सबकी अगर मदद रही तो जल्दी से जल्दी हम वापस सहज संसदीय लोकतंत्र और आजादी के साथ जीवन को बिताना शुरू कर सकें। लेकिन इंदिरा जी का ये वायदा बहुत लंबा हो गया। न सिर्फ आपातकाल महीने 2 महीने की बजाय 19 महीने तक लागू रहा,
बल्कि लोकसभा का जो अगला चुनाव था, संसद की उम्र भी बढ़ा दी गई और लोकसभा के चुनाव के टलने के कारण एक जबरदस्त भय भी फैल गया कि अब तो भारत तानाशाही के रास्ते पर बगैर चुनाव के, बगैर प्रतिनिधि मूलक जनतंत्र के बरसों बरस फंस गया। क्योंकि ऐसा ही अन्य नव स्वाधीन देशों के इतिहास में हुआ था। ब्राजील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, कई उदाहरण बड़े खतरनाक थे कि एक बार जो चुनाव की डोर छूटी और संसद की पतवार टूटी और तानाशाही का स्वाद शासकों के मुंह को लग गया, तो जैसे शेर पहले शिकार तक तो आदमखोर नहीं होते, लेकिन एक बार आदमी का मांस खाने के बाद वो बार बार उधर ही दौड़ते हैं। आपातकाल में क्या खराबी आई? क्यों आपातकाल को आप दुष्काल कहते हैं? क्योंकि आपातकाल ने स्वाधीनता और स्वराज के जितने प्रतिमान थे सबको तोड़ दिया। स्वराज का सबसे बड़ा अर्थ होता है अभिव्यक्ति और संगठन की आजादी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बगैर मुकदमे के भी महीनों हम जेल में बंद कर देंगे अगर आपने सरकार की आलोचना की या उसके खिलाफ कोई मीटिंग की या कोई प्रदर्शन किया। और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों से लेकर के दूर बिहार और बंगाल के विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को भी नहीं बख्शा गया। दूसरा मोर्चा आपातकाल के कारण जो पराजय का मोर्चा हुआ देश की चेतना के लिए, वो था मीडिया की आजादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंच मीडिया होता है और लोकमान्य तिलक से लेकर के महात्मा गांधी तक 20 बरस मीडिया को सरकार के नियंत्रण के बाहर रखने के लिए लोग लड़े। इनके संपादकीय पर इनको जेल किया गया, इनके अखबार जब्त किए गए, इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये झुके नहीं। और इसलिए स्वतंत्रता की परिभाषा में मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी बात थी। लेकिन आपातकाल में 19 महीने सेंसर की व्यवस्था हो गई, जिसमें हर छोटे बड़े अखबार को अपने संपादकीय से लेकर समाचारों तक को जांच कराने के बाद ही छापने की इजाजत थी, जिसके प्रतिरोध में बहुत सारे समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय पृष्ठ को खाली रखना छोड़ा। तो कहा नहीं, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। और कई पत्रकार गिरफ्तार किए गए। देश के छोटे बड़े अखबारों को मिला करके 150 से ज्यादा पत्रकार गिरफ्तार हुए और 1.5 दर्जन से ज्यादा अखबार बंद हुए। और गिरफ्तार पत्रकारों में श्रेष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर जी का नाम देने से आपको समझ में आएगा कि वो वरिष्ठतम पत्रकारों में थे, लेकिन उनको भी संपादकीय लिखने के लिए गिरफ्तार कर। तीसरी बात थी न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधानमंडल का संबंध। हमारे संविधान में तीनों की स्वायत्तता है, अपना अपना कार्यक्षेत्र है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर निगरानी का काम करती है। लेकिन आपातकाल के प्रावधानों के कारण चूंकि मौलिक अधिकार सब स्थगित कर दिए गए, अदालत को इस बात का अधिकार नहीं रह गया कि वो सरकार के कार्यों की समीक्षा करे। और नागरिकों के बारे में ये कहा गया कि अगर आपातकाल के दौरान सरकार राष्ट्र के हित के कारण किसी की जान भी ले ले तो उसकी अनुमति है, राइट टू लाइफ भी नहीं। ये बहुत भयंकर ऐलान था, जिसमें न्यायपालिका तो हमेशा एक निगरानी का मंच होता था और आज भी है और आगे भी रहेगी, यही हमारे संसदीय जनतंत्र की कसौटी है, उसका अधिकार नष्ट कर दिया। अब बची कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में ये प्रावधान है कि हम अपने प्रशासन का संचालन चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से बहुमत वाले दल की सरकार की निगरानी में करते हैं। मिनिस्टर होते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनका निर्देश होता है कैबिनेट का और फिर प्रशासन उसको लागू करता है। आपातकाल में ऐसा हुआ, जिसका विवरण काफी विस्तार से अब अखबारों में, पत्रिकाओं में, किताबों में भी है, कि इंदिरा गांधी जी के इर्द गिर्द उनके छोटे बेटे संजय गांधी, जो किसी गांव सभा के भी सदस्य नहीं थे, उनके टाइपिस्ट आर.के. धवन, जो मुश्किल से इंटरमीडिएट या बीए पास थे, किसी प्रशासनिक सेवा से उनका कोई संबंध नहीं था, सिफारिश की नौकरी से लगे थे। और राज्य गृह मंत्री श्री ओम मेहता, उनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्मानंद रेड्डी थे, लेकिन ओम मेहता, और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंशीलाल, इन चार का एक ग्रुप बन गया जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संविधान से भी ऊपर की ताकत बन गए।
और इंदिरा जी के नाम पर इन्होंने शासन चलाना शुरू किया। इनकी निगरानी कौन करे? मंत्रालय की निगरानी तो मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल की निगरानी संसद करती है। लेकिन जब ऐसा समूह आ गया और इनकी बात न मानने वाले अफसरों को और लोगों को सजा मिलने लगी, सस्पेंड किया जाने लगा, ट्रांसफर किया जाने लगा, तो चारों तरफ से एक भय का माहौल हो गया। तो जो आपने पहला शब्द इस्तेमाल किया कि इसकी राजनीति क्या थी, ये भय की राजनीति थी। सब इतने बड़े देश को ये डर फैला दिया गया कि चारों तरफ खुफिया पुलिस फैल गई है, संभल के रहो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। और गिरफ्तार होने का मतलब ये नहीं कि फिर जमानत हो जाएगी, जमानत तो हत्यारे की भी हो जाती। लेकिन यहाँ पर न अपील, न दलील, न वकील, आप महीनों महीनों नहीं बरसों बरस जेल में सड़ा दिए जाएंगे। तो इससे भय हो जाता है। आप जानते ही हैं, हम सभी अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को लेकर सुरक्षा भाव से ग्रस्त रहते हैं और जेल का डर सबसे बड़ा डर होता है, नौकरी जाने का डर सबसे बड़ा डर होता है, रोजी रोटी की जाने का डर। सर इसी राजनीति वाले विषय पर एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा ताकि आप उसको और स्पष्ट कर पाएं कि क्या उस समय जो दुनिया देश की राजनीति थी वो और कांग्रेस के भीतर भी एक राजनीति चल रही थी जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी को असुरक्षा का भाव हुआ और वो उसके पहले हम देखते हैं कि थोड़ा प्रीवी पर्स का मामला था, फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विषय आया और उसमें फिर जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनका इस्तीफा लेने की एक प्रसंग। तो क्या कांग्रेस के भीतर कुछ इस तरह की प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता थी जिससे भयभीत होकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अनुशासन और गरीबी हटाओ का एक नारा दिया? तो ये इसकी कोई बिटवीन द लाइन्स या कुछ इनसाइड स्टोरी कुछ इस तरह की? इसकी भी एक महत्ता थी। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने 1969 और 1971 के बीच में अपनी मातृ पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध थे उसको लेके पार्टी का विभाजन करा दिया था और पार्टी का संसदीय दल का बड़ा हिस्सा उनके साथ आया था। फिर 1971 में जो आम चुनाव हुआ, संसद को भी भंग कराया उन्होंने कि ये संसद तो पुराने पार्टी के आधार पर बनी थी, पार्टी ही टूट गई तो संसद भी अब नई चुनिए। और फिर जनता के बीच में जब वो गई तो इंदिरा गांधी जी से असंतुष्ट कांग्रेसियों ने संगठन कांग्रेस नाम से एक मंच बनाया। उस मंच ने उस समय की समाजवादी पार्टी, उस समय की स्वतंत्र पार्टी, उस समय की जनसंघ के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया जिसको कहा गया महागठबंधन या सिंडिकेट, और उन्होंने नारा दिया इंदिरा हटाओ। इंदिरा जी ने इसी नारे को पलट करके जनता के बीच में सवाल पेश किया कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, अब आप ही चुनिए। अब ये ऐसा सुंदर समीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें चुनने के लिए कुछ था ही नहीं। इंदिरा हटे ना हटे इससे बहुत लोगों को क्या मतलब, गरीबी हट जाए तो सबको आनंद है, कौन गरीब रहना चाहता है सुदामा के अलावा। और सुदामा भी गए थे कृष्ण के यहाँ कि हमारी गरीबी दूर करो, नहीं हमारी घरवाली हमको रोटी नहीं दे रही है, गरीबी हटाओ। इस पर प्रचंड बहुमत मिला और इस चुनाव के मौके पर इंदिरा जी की एक वामपंथी छवि बनी, क्योंकि इंदिरा जी ने कहा कि अगर हमको मौका मिलता पिछली सरकार के समय में तो हमने भूमि बांटी होती भूमिहीनों को, राजा रानी का प्रीवी पर्स हमने खत्म करके उनको सामान्य नागरिक बनाया तो हमारे खिलाफ बगावत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस फैसले को रद्द कर दिया। बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण करके गरीबों के लिए बैंकों का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो पहले तो हमारे वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई नहीं सहमत हुए, देश के अरबपति नहीं सहमत हुए और उसके बाद अदालत ने भी हमको दिक्कत की। आप हमें फिर से आदेश दीजिए, हम इस पूरे प्रगतिशील कार्यक्रम को निश्चिंत होकर लागू करना चाहते हैं। 71 का प्रबल बहुमत, उसके बाद 72 में चुनाव आया दोबारा विधानसभाओं, क्योंकि जब 71 का चुनाव हो गया तो इंदिरा जी ने तमाम विधानसभाओं को भंग किया, क्योंकि ये तो पिछला चुनाव था, उसका स्वाभाविक भी भंग होना था, और 72 की विधानसभा में भी वो जबरदस्त जीती। इस बीच में भारत का पुराना हिस्सा पाकिस्तान, वहां गृह युद्ध का घंटा बिगुल बज गया और बांग्लादेश नाम की एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें पंजाब और सिंध के पाकिस्तानी, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्ला भाषी पाकिस्तानियों से नाराज थे।
चुनाव में बहुमत मिला था पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को, लेकिन गैर बंगाली पंजाब पाकिस्तानियों ने मिलकर उनको सत्ता नहीं दी। उस पर गृह युद्ध हुआ। पाकिस्तान के पंजाबी सिंधी हिस्से ने बांग्ला हिस्से पर सेना के जरिए प्रहार किया, निर्दोष नागरिकों की हत्या की, और उसमें फिर मुक्ति वाहिनी बनी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की लड़ाई शुरू हुई शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। उन्होंने भारत में शरण ली और भारत से मदद मांगी। भारत ने अपनी सेना भेजी। पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया और पाकिस्तान की 1 लाख सेना भारत की कैदी बन गई। फिर पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो समझौते के लिए शिमला आए और बड़ी मुरव्वत करके एक शिमला समझौता हुआ। उनके 1 लाख सैनिक हमने छोड़े और हमेशा के लिए पाकिस्तान को हमने उसका अंग भंग कर दिया। तो पाकिस्तान के तोड़ने के कारण इंदिरा जी की सामरिक छवि भी जवाहरलाल जी की तुलना में, जो चीन से पराजित हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री की तुलना में, जिन्होंने युद्ध तो जीता था लेकिन ताशकंद समझौते में अपनी जमीन खो दी थी, इंदिरा जी श्रेष्ठतम साबित हुई। और उस समय के विरोधी दल के प्रखर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कहा कि ये तो दुर्गा का अवतार है। कोई विरोध नहीं था, पार्टी के अंदर विरोध नहीं था, पार्टी के बाहर जो दल थे, विरोधी दल, उनका झंडा, बैनर और साइन बोर्ड तो था, लेकिन उनके पास विधायक और सांसद नहीं थे, वोट नहीं था, समर्थन नहीं था। हाँ, एक जरूर समस्या थी, वो नैतिक संकट। इंदिरा जी की सरकार पर और उस समय की तमाम राजनीतिक ताकतों पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे हुए थे। इंदिरा जी पर वो दाग ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा था कि वो जवाहरलाल की बेटी थी, स्वतंत्रता सेनानी परंपरा से थी। जवाहरलाल जी के आलोचकों ने भी कभी उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगा था कि अपने छोटे बेटे संजय गांधी को एक कारखाना का मालिक बनाने के चक्कर में उन्होंने तमाम नियमों को तोड़ा मरोड़ा है। योग्य इंजीनियरों की दरखास्तों को एक किनारे करके अपने अर्ध शिक्षित बच्चे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उसके लिए सेना की जमीन दे दी, बैंक का लोन दिला दिया। देश भर में तमाम नियमों को पलट के वो इंदिरा गांधी जी अपने बच्चे का करियर बना रही हैं। तो नारा लगा, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है, क्योंकि तमाम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लड़के लड़कियां उस समय शिक्षित बेरोजगारी से पीड़ित थे और उसको लेकर के बिहार में आंदोलन चला। उसके पहले गुजरात में चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन हुआ। मूंगफली का तेल महंगा हो गया, लड़कों ने कहा हम फीस नहीं बढ़ा, ये बड़ी फीस क्यों? कहा मूंगफली का तेल महंगा हो गया। उनका हम हॉस्टल का खाना फेंकते हैं जमीन पर, ये सब भ्रष्टाचार है नेताओं का। मूंगफली की तो फसल अच्छी हुई थी, दाम घटना चाहिए था, दाम बढ़ क्यों गए? इस आंदोलन को गृहिणियों ने भी समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि ये तेल का दाम बढ़ गया, हमारा बजट बिगड़ रहा है। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के मुकाबले के लिए सेना बुलाई गई। सेना ने उस समय की सरकार से कहा कि ये तो राजनीतिक मसला है, ये तो मूंगफली के तेल का दाम है, आपका चंदा है, आपका शासन है, सेना का इसमें क्या काम है? ना इसमें पाकिस्तान है, न चीन है, न अमेरिका है, आप इसको सुलझाइए। और मोरारजी देसाई अनशन पर बैठ गए, ये विधानसभा पाप से बनी है, भ्रष्टाचार से बनी है, इसको भंग करो। जनता ने उसको समर्थन किया, इंदिरा जी को भंग करना पड़ा और इस आंदोलन की लपट बिहार तक चली गई। बिहार में भी ऐसा ही माहौल था, हालांकि वहां पर अभी चुनाव को लेकर के कोई झगड़ा नहीं था, दाम भी उस तरह से अलग से बढ़े नहीं थे, दाम बढ़ रहे थे। तो वहां पर विद्यार्थियों ने सम्मेलन करके ये 4 सूत्री मांग पत्रक बनाया था, महंगाई, भ्रष्टाचार, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी। पटना प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें गोली चल गई। गोली के बाद जुलूस और समूह में अफरा तफरी हुई, गुंडों ने सारा माहौल कब्जे में कर लिया, पूरे पटना में जगह जगह आगजनी हुई, कर्फ्यू लग गया, 12 जिलों में बिहार के कर्फ्यू लग गए, कई लोग मारे गए। और उसके बाद विद्यार्थियों की अपील पर जयप्रकाश नारायण बीच में आए, उन्होंने कहा कि हिंसा गलत है, सरकारी हिंसा भी और नौजवानों की हिंसा भी, लेकिन नौजवानों का गुस्सा जायज है। देश को अपनी अर्थव्यवस्था, नेताओं को अपना भ्रष्टाचार, विद्यालयों को अपनी शिक्षा और कारखानों को अपनी रोजगार नीति को सुधारना चाहिए। विद्यार्थियों का गुस्सा जायज है। ये एक नैतिक शक्ति थी जो प्रतिपक्ष में खड़ी हो रही थी और इंदिरा गांधी जी को इस नैतिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए कोई सहारा मिल नहीं रहा था।
क्योंकि सर्वोदय का आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व के कारण इस आंदोलन के साथ हो गया और गैर कांग्रेसी दलों ने भी इसका लाभ उठाया। उन्होंने कहा हमसे जो गलती हुई माफ करिएगा, हम आपके अनुशासन में चलने को तैयार हैं, हमारा पुनर्जन्म कराइए, हमारा अछूतोद्धार कराइए। और जयप्रकाश जी ने भी सख्ती के साथ कहा कि देश की दुर्दशा के पीछे सब दलों का योगदान है, खाली कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा गलत है, व्यवस्था बदलो का नारा होना चाहिए। और विद्यार्थियों से कहा कि यह जो फुटकरिया हिंसा करते हैं, बस का किराया घटाओ, सिनेमा का टिकट घटाओ, रेल में टिकट घटाओ, ये गलत आंदोलन है। आपको शिक्षा और अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के नवनिर्माण का आंदोलन करना चाहिए। ये संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। इसीलिए जो आपने सवाल उठाया कि राजनीतिक दलों की क्या भूमिका थी और पार्टी के अंदर गतिरोध था, तो नहीं, एक छत्र शासन था, कहीं कोई चुनौती नहीं थी सिवाय जयप्रकाश नारायण और नौजवानों की चुनौती। और उस चुनौती के आगे इंदिरा जी चुनाव की जीत के बावजूद जनता के बीच में अलोकप्रिय होती जा रही थी। और गरीबी हटाओ से जुड़ा हुआ जो आंकड़ा था वो विश्वासजनक नहीं था। बैंकों ने लोन दिया था, लेकिन बैंकों का लोन किसको मिला? पता चला कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लूट ले गए। सरकारी पार्टी के बिचौलिए, बैंक के मैनेजर, बैंक के बाबू, गरीबी हटाओ के नाम पर बिचौलियों की गरीबी हट रही थी, आम लोगों पर कोई। इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में दाम बढ़ गया, डीजल का, पेट्रोल का। इसलिए भारत की हर चीज की लागत, खेत के रासायनिक उर्वरक से लेकर के बच्चों के स्कूल की बस तक का किराया बढ़ गया। तो महंगाई बेलगाम होने लगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लग नहीं रही थी। नौजवानों को संवाद के लिए निमंत्रित करने की बजाय लाठियों से पीटा जा रहा था, कहीं कहीं गोली चलाई जा रही थी। और गुजरात से लेकर बिहार के बीच का सारा हिंदुस्तान सड़कों पर आने लगा। इसी बीच में एक रेल की भी हड़ताल हो गई। मजदूरों की परेशानियों को लेकर के रेल यूनियन ने निवेदन किया कि वार्ता करो, आप तो गरीबों के हित की सरकार है। उन्होंने वार्ता न करके DIR में, भारत सुरक्षा अधिनियम में, रेल के तमाम बड़े नेताओं को बंद किया। 22-23 दिन पूरे देश की रेल की हड़ताल रही। 22-23 दिन देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई और रेल मजदूर हजारों की तादाद में बंद किए गए, सैकड़ों की तादाद में निकाले गए। और रेल मजदूरों के जरिए इंदिरा जी ने उद्योग के साथ जुड़े तमाम मजदूरों को संकेत दिया कि रेल के मजदूरों का जब हम ये हाल कर सकते हैं तो तुम अपना भी समझ लेना। तो असंतोष अंदर अंदर पनपने लगा। और जो कहा जाता है कि लोकतंत्र की कसौटी यही है कि विपक्ष के साथ संवाद हो, असंतोष का समाधान हो। ये दोनों कसौटी पर इंदिरा जी कई कारणों से असफल रही। और आखिरी बात ये हो गई कि 12 जून 1975 को इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव में भ्रष्टाचार का एक मुकदमा जो 1971 से चल रहा था, 4 साल चलते चलते, जो कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन इंदिरा जी की अपनी तारीख भी आ गई। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इनके प्रतिद्वंदी राजनारायण को वोट तो कम मिला, लेकिन उनके आरोप सही लगते हैं। इंदिरा जी का जो मुख्य चुनाव एजेंट था वो चुनाव की तारीख के बाद तक सरकारी कर्मचारी था। सरकारी कर्मचारी की मदद से अपने चुनाव का संचालन करना भ्रष्टाचार है। फिर इंदिरा जी की अनेकों चुनाव रैलियों का इंतजाम सरकारी पैसे से किया गया। वो प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक दल के उम्मीदवार के नाते गई थी, ये खर्च भी नहीं होना चाहिए था। इस तरह से इन दो मुद्दों पर इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित हुआ। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जब इंदिरा जी ने दरखास्त की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर तो ये रह सकती है, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दे सकती। तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति मिला जो वोट ही नहीं दे सकता था। तो कांग्रेस के अंदर कई लोग ये दबाव पैदा करने लगे अप्रत्यक्ष तरीके से कि इंदिरा जी किसी और को अस्थायी प्रधानमंत्री बना दे। असंतोष और अविश्वास का ऐसा माहौल था, अनिल जी, अरुण जी और मोनिका जी, कि इंदिरा जी को उस कैबिनेट में 40-50 देवी देवता थे, बाहर से भी वो किसी को बना सकती थी, जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया या और भी हो सकता था। वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी और अपने बेटे और सलाहकारों की राय पर उन्होंने बजाय पद छोड़ने के, गरिमामय तरीके से जनता का विश्वास पुनः पाने के, अपने को कुर्सी पर बनाए रखा। और जो विरोधी थे
और उनकी अपनी पार्टी के भी कई लोग, जो उनके अपने संसदीय दल के महामंत्री थे श्री रामधन और कार्यकारिणी के सदस्य थे श्री चंद्रशेखर, ऐसे लोगों को भी जेल में बंद कर दिया, जो या तो ये कह रहे थे कि जयप्रकाश जी से बात करो, गोली का नहीं बोली का रास्ता बनाओ, या ये कह रहे थे कि इंदिरा जी कुर्सी छोड़ें। और जगजीवन राम, ब्रह्मानंद रेड्डी, एक सज्जन उस समय थे कांग्रेस के अध्यक्ष, आसाम के नेता श्री देवकांत बरुआ, उन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन जब अदालत ने इंदिरा जी के ऊपर दाग लगा दिया तो ये खुद ही बारात के दूल्हा बनने को तैयार हो गए कि हम ही को बना दीजिए प्रधानमंत्री। इंदिरा ने कहा कि तुम्हारे जैसे को तो हम कभी नहीं बनाएंगे, जब तुम्हारे मुंह पर इतनी चापलूसी करते हो तो कुर्सी पर बैठने के बाद तो हमको भूल ही जाओगे। खैर, अब ये सब दुखद व्यंग की बातें हैं, लेकिन मैं वापस आता हूं आपके सवाल के लिए कि उस समय का जो राजनीतिक समाजशास्त्र था वो तो था वैधता का संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस। भारतीय संविधान में सत्ता की वैधता का आधार चुनाव है, और चुनाव में जिस दल को बहुमत मिला उसका जो नेता चुना गया वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन जब चुनाव ही अवैध हो गया उस व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, तो फिर नया नेता चुनिए, नई सरकार लाइए। दूसरा, उसी समय 12 जून के आसपास ही ये जो गुजरात का आंदोलन हुआ था, जिसे गुजरात की ताजा चुनी हुई विधानसभा भंग करनी पड़ी, भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोपों से सनी हुई कांग्रेस, जब दोबारा चुनाव हुआ तो 12 जून का उसका नतीजा आया गुजरात में। और टूटी हुई कांग्रेस का जो संगठन कांग्रेस हिस्सा था, उसके दल के लोग बहुमत में आ गए। इंदिरा जी के देखते देखते गुजरात हाथ से निकल गए, और ये बिहार के लड़कों ने अपनी बुद्धि लगा दी उसी में इंदिरा जी को डराने के लिए। उन्होंने नारा लगाया, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। तो लोगों ने कहा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कि भैंस गई तो गई, 1.5 हाथ पगार भी लेके जा रही है। भाई हमारी जान बचाओ, और या तो इस आंदोलन को काबू में करो, और या अपनी कुर्सी छोड़ो, किसी तरह से पार्टी को, सरकार को बचाओ। इंदिरा जी ने देखा कि आंदोलन पर काबू करना तो मुश्किल है, उन्होंने आरोप लगाया, और आरोप गलत नहीं था, क्योंकि उसके बाद फिर रैली शुरू हो गई। घरों में जाके सुस्ता रहे आंदोलनकारी, सड़कों पर आ गए। दिल्ली में अखिल भारतीय रैली हुई 25 जून को। कहते हैं कि उससे पहले उतनी बड़ी रैली रामलीला मैदान में किसी की नहीं हुई थी, किसी की नहीं हुई थी, न जवाहरलाल की, न इंदिरा गांधी की, न किसी और की। और उस रैली को देख करके जयप्रकाश जी को लगा कि देश की बेचैनी को स्वर देना चाहिए। जयप्रकाश जी ने वहीं से ऐलान किया कि हम सब लोग निवेदन करते हैं कि इंदिरा जी देश के हित में कुर्सी छोड़ें, और अगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो हम देश भर के जिला मुख्यालयों पर 3 दिन बाद से धरना शुरू करेंगे। और इस ऐलान में दम था, क्योंकि जयप्रकाश तब तक देश के सचमुच लोकनायक बन चुके थे, दलों से ऊपर और देश के नजदीक। और उससे घबरा के इंदिरा जी ने रात के 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को जगा करके एक तरह से दबाव डाल करके दस्तखत कराया, और आपातकाल लग गया। तो राजनीतिक समाजशास्त्र की भाषा में इट वाज क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी व्हिच वाज kept growing because of the denial of the crisis by the ruling party. कहते लोग यही हैं, अनुमान करते हुए, और हमारे जैसे समाज वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा दे करके, संसद भंग करके मध्यावधि चुनाव का रास्ता अपनाया होता, जो उन्होंने 1971 में किया था, जब मोरारजी से उनका झगड़ा हुआ था, तो बड़ी संभावना है कि इंदिरा जी को ही फिर जनता चुनती, क्योंकि विपक्षी दलों में एकता नहीं थी, नैतिक बल नहीं था, साधन नहीं था। दूसरे, इमरजेंसी के बाद भी आपको मालूम होगा, अरुण जी बताएंगे आपको, कि जो चुनाव हुआ 1977 में, इमरजेंसी के 19 महीने बाद, उसमें भी दक्षिण भारत के अधिकांश सीटें इंदिरा जी की पार्टी को मिली थी। आंध्र में, कर्नाटक में, केरल को छोड़कर। तो दक्षिण भारत तो उनके पास तब भी था जब इमरजेंसी उन्होंने 19 महीने चलाई। उत्तर भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं ज्यादा गर्मी नहीं थी। हम लोग तो आंदोलन के कार्यकर्ता थे। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उस समय समाजशास्त्र में एमफिल कर रहा था, और मेरा सौभाग्य था कि जयप्रकाश जी ने मुझे अपने निर्देशन में चल रहे आंदोलन का वॉलंटियर बनाया, और मेरे न जानते हुए मुझे उस समय, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन चुका था,
मेरे मुकाबले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाद के बड़े कम्युनिस्ट नेता श्री प्रकाश करात चुनाव में थे। चुनाव इसी बात पर हुआ कि जयप्रकाश जी सही हैं कि इंदिरा जी सही हैं। लोगों का आनंद कहता है जयप्रकाश जी सही हैं तो पटना भी हो आया, इसी को जिताया जाए। तो 1 साल पहले मैं उनसे हारा था, दूसरी बार मैं जीत गया। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में ऐसे ही चुनाव हुआ, इंदिरा जी के लड़कों में और विरोधियों में। अरुण जेटली विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे, वहां वो जीते प्रबल बहुमत से। और जयप्रकाश जी ने जो राष्ट्रीय समिति बनाई, छात्र युवा संघर्ष संचालन समिति, उसमें अरुण जेटली जी को और मुझे सह संयोजक बनाया। ये मेरा बहुत सौभाग्य और सम्मान का विषय था। लेकिन जो माहौल था वो यही था कि इंदिरा जी राजनीतिक कौशल में चूक गई। उनको लगा कि न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर से भी बगावत है, हमारी पार्टी में भी कोई मेरे साथ नहीं है। और इस असुरक्षा बोध के कारण और बिल्कुल नादान लोगों की सलाह, एक क्लर्क जो टाइपिस्ट उनका था, जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, खाली वो साधन इकट्ठा करता था, चंदा इकट्ठा करता था, आर.के. धवन, उनका बेटा जो अपना कारखाना भी नहीं खड़ा कर पा रहा था पूरी सरकारी मदद के बावजूद, संजय गांधी, उनका एक बहुत ही मुट्ठी भर की सियासत का नेता बंशी लाल, हरियाणा की कुल 12-15 सीटें लोकसभा में थी, उनकी राय पर उन्होंने इमरजेंसी लागू करा। और कहते हैं सिद्धार्थ शंकर रे, जो बंगाल के हत्यारे के रूप में बदनाम थे, जिन्होंने नक्सलवाद और सीपीएम के कार्यकर्ताओं का राजनीतिक मुकाबला करने की बजाय बड़ी संख्या में उनका नरसंहार किया था, उनकी राय से ये सब किया। तो राजनीति थी भय की राजनीति, जो 19 महीने टिक गई। और संकट राजनीतिक समाजशास्त्र की भाषा में भयता का संकट था। इसमें भारतीय समाज के चरित्र को लेकर कुछ नहीं था। भारतीय असंतोष में कोई अलग से उबाल नहीं आया था। मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन सब मध्यम दर्जे के थे। हम जिस आंदोलन के कार्यकर्ता थे, यानी बिहार का छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति आंदोलन, वो भी इतना ही था कि हमारे कहने से 100-200 लोग जुलूस के लिए आ जाते थे, क्योंकि जुलूस निकालने की भी एक सीमा होती है। आप सब विद्यार्थी रहे हैं, 2-4 दिन नारा लगा लीजिए, उसके बाद घर वालों का भी दबाव आता है, टीचर का दबाव आता है, करियर का दबाव आता है। विद्यार्थियों में इतना टिकाऊपन थोड़ी है कि बरसों बरस की लड़ाई लड़ सके। वो किसान थोड़ी है कि वो एक आध फसल नहीं भी बोएंगे तो काम चल जाएगा। और मजदूर नहीं है कि उनका देश भर का और अंतर्राष्ट्रीय ताना बाना रहता है, रेल मजदूरों का, स्टील मजदूरों का, खान वगैरह वगैरह। तो ये भय से उन्होंने अपना शासन चलाना चाहा, वही भय उनके ऊपर हावी हो गया और उसी भय ने उनको गलत रिपोर्ट भी दिलाई, क्योंकि इमरजेंसी खत्म करने का तरीका हुआ चुनाव। चुनाव के पहले सर्वे कराया इंदिरा जी ने। अब कौन कहे कि राजा नंगा है, तो सब सीआईडी वालों ने यही रिपोर्ट की कि चारों तरफ आप ही का जय जयकार है। जयप्रकाश जी को तो लोग जानते भी नहीं है, सब समझते हैं कि कोई खुरापाती बूढ़ा गांधीवादी था। आपने अच्छा ही किया इन सबों को जेल में बंद कर दिया, ये सब हैं किस लायक। इंदिरा जी ने 22 संगठनों को भी बैन किया था। उसमें अति वामपंथी सीपीआई एमएल थी, तो दक्षिण पंथ राष्ट्रीयता की प्रतीक आरएसएस थी, और अति दक्षिणपंथी आनंद मार्गी भी थे, और भी जमाते इस्लामी भी थी। तो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सब आपस में भाई भाई बना के उन्होंने जेलों में बंद कर दिया। और इस बेसिर पैर के शासन से जनता कैसे नाराज हुई। जनता इसके बावजूद नाराज नहीं हुई थी मोनिका जी। इनके लड़के ने कुछ दिनों बाद इंदिरा जी के 20 सूत्री प्रोग्राम के मुकाबले एक अपना 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला। उसमें पहला सूत्र था जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा था मलिन बस्तियों का उन्मूलन, नगर का सुंदरीकरण, तीसरा था पर्यावरण संरक्षण, और चौथा था अनुशासन के लिए एक निगरानी का गठन। ये जो अनुशासन का मामला था ये तो फिर भी लोगों को समझ में आता था। ये जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने कोटा बांध दिया हर सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर से लेकर दफ्तर के बाबू को, कि तुम्हारी अगली तनख्वाह तभी मिलेगी जो महीने भर में 20 लोगों को ले आओगे। तो उन्होंने अपना ही नसबंदी कराना शुरू किया। फिर जवान लड़कों को बारात से उतार के दूल्हों की नसबंदी कराना शुरू किया। 80 बरस के बुजुर्गों की नसबंदी कराना शुरू किया। चारों तरफ नारा फैल गया, इंदिरा हटाओ, इंदिरी बचाओ। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत जालिम लोग आ गए हैं, ये हमारी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
और उन्होंने जो कुछ नगरों के सुंदरीकरण का काम किया, उसमें मीडिया पर सेंसर लगाने से उनका बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने मुश्किल से 10, 12, 15 शहरों में 25-50 मलिन बस्तियों को रातों रात उजाड़ करके वहां फूल बत्ती लगाने का काम किया। उसमें दिल्ली में एक बस्ती थी तुर्कमान गेट, अभी भी है। तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली की गरीब बस्ती है जहां रोज कमाने खाने वाले रहते हैं, ज्यादातर मुसलमान लोग। उन्होंने बड़ी चिरौरी की, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। जाड़े का दिन था, इन्होंने बुलडोजर चलवा करके सैकड़ों घर बर्बाद किए और उनको कहा कि अब जमुना पार आपको रहने की बस्ती मिलेगी। उनकी रोजी रोटी घर का बर्तन मांजना, ठेला चलाना, माल ढोना, ये सब तो चांदनी चौक के आसपास का था। कहा जमुना पार जाओ और फिर वहां से आना जाना, जितना कमाओगे उतना से ज्यादा किराए में खर्च होगा। और दूसरे गोली भी चली। चूंकि मीडिया पर बैन था अनिल जी, और आप मीडिया के विशेषज्ञ हैं, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जब सच नहीं चलता तो झूठ का सिक्का चल जाता। तो तुर्कमान गेट में कुछ 100 घर बर्बाद किए गए और कुछ दर्जन लोग मारे गए। लेकिन वो खबर केरल और कश्मीर तक जाते जाते कई हजार घर बर्बाद हो गए और कई हजार लोग मारे गए। और इसमें ज्यादा मुसलमान थे, तो मुसलमानों की विरोधी सरकार है, दलितों की विरोधी सरकार है। तो जिस बेस पर इंदिरा जी का 1971 में शासन बना था, ब्राह्मण या द्विज कहिए, दलित जगजीवन बाबू और मुसलमान फखरुद्दीन अली अहमद, उस समीकरण को इमरजेंसी के अराजक शासन ने तोड़ दिया। और फिर आप जानते ही हैं कि आखिरी दिनों में न सिर्फ जामा मस्जिद के इमाम बाहर आ गए बगावत करके और अपील करने लगे मस्जिदों से कि वोट मत देना इस सरकार को, बल्कि जगजीवन राम जी जो उस समय के सबसे बड़े दलित नेता थे, सरकार के बड़े मंत्री थे, आपातकाल का प्रस्ताव इन्होंने ही लोकसभा में प्रस्तुत किया था। 1937 से कांग्रेसी थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। बहुगुना जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव इंदिरा जी के नाम पर जीते थे, नंदिनी सतपथी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना लिया। और इन सब ने जयप्रकाश जी के अनुशासन में, आचार्य कृपलानी के मार्गदर्शन में, साधन के न होने के बावजूद, कई उम्मीदवारों के जेल में होने के बावजूद, चुनाव के मोर्चे पर आमने सामने का मुकाबला किया और आपातकाल फिर चुनाव के नतीजे के बाद खत्म। ये आपको हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी अरुण जी, आपके साथ ही एक सवाल जोड़ के मैं आपको और मोनिका जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जी 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 सर ने बातें, ये थोड़े अर्ध राजनीतिक किस्म का सवाल है, उसमें चूंकि वो कई तरह के वाद है उसमें जुड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा उसको बौद्धिक भी समझ रहा हूँ कि इमरजेंसी के आसपास ही एक तो जैसा सर ने बताया कि कांग्रेस के भीतर ही इंदिरा हटाओ की बात चल रही थी, गैर इंदिरावाद की बात कांग्रेस के भीतर उठ खड़ी हुई। कांग्रेस के बाहर देश में, जैसा लोहिया जी ने कहा, एक गैर कांग्रेसवाद की बात भी साथ साथ चल रही थी। और जैसा सर ने जो जोड़ा कि जयप्रकाश जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन की बात और उसके साथ संपूर्ण क्रांति की बात कही, तो इसमें क्या कोई एक सापेक्ष इंटरलिंकिंग है, अंतर संबंध है? गैर इंदिरावाद, गैर कांग्रेसवाद, फिर वो व्यवस्था परिवर्तन और फिर वो संपूर्ण क्रांति, या आपस में कोई इसका परस्पर विरोध है? परस्पर विरोध दिखता है या फिर कुछ इंटरलिंकिंग है कि कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस का या इंदिरा जी का विरोध हो रहा था, बाहर भी एक गैर कांग्रेसवाद की एक बात चल रही थी, और उसके आगे व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई और संपूर्ण क्रांति की बात हुई। तो अरुण जी, इसमें अगर आपको जोड़ना हो तो आप अपना सवाल सर के साथ करके और इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं प्लीज। जी 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 सर, इसी के साथ जो प्रोफेसर अनिल सौमित्र सर के साथ ही जोड़ते हुए यह है कि आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब आप शिक्षक नेता थे, तब भी आपको छात्र नेता के रूप में ही हम लोगों ने पाया है। और जब भी छात्रों का आंदोलन होता तो कहीं बीच में खड़े दिखाई देते, अचानक छात्रों को संबोधित करते हुए दिखाई देते। तो इसी के साथ जोड़ के ये है कि आखिर ऐसा क्या था, कैसे संयोजन हुआ कि गुजरात के मेष के शुरू हुआ आंदोलन दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली में आप लोगों ने उसको कैसे आगे बढ़ाया? जैसे आपने कहा कि छात्र
बहुत दिन तक आंदोलन नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा क्या था कि गुजरात का आंदोलन दिल्ली आया, दिल्ली से बिहार, और इस तरह के देशव्यापी आंदोलन हुआ, और आप लोगों ने कैसे इसको? ये बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। एक होता है समभाव या संवेदना। जब आप सब एक ही स्तर पर असंतोष के होते हैं तो सब सक्रिय तो नहीं होते, लेकिन जो सक्रिय होता है या होती है उसके साथ आपकी भावना जुड़ जाती है, और जब उस पर हमला होता है या उस पर चोट लगती है तो आप भी सक्रिय हस्तक्षेप के लिए विवश हो जाते हैं। ये जो विद्यार्थी आंदोलन की समस्या थी, गलत शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षित बेरोजगारी को लेकर के, ये खाली विद्यार्थियों की नहीं थी, विद्यार्थियों से ज्यादा उनके परिवारों की थी, और कोई अंत नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरी तरफ सरकारों को बदलने से राहत मिलने का जो एक भरोसा था, वो 1967 और 71 के बीच में प्रादेशिक स्तर पर सरकारों को बदलने से और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार में विघटन के बावजूद कुछ ज्यादा राहत मिली नहीं। इसलिए एक सामान्य समझ ये बन गई थी कि इस व्यवस्था में गुंजाइश नहीं है, शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, सरकार बदले न बदले शिक्षा बदले, और शिक्षा बदले न बदले रोजगार नीति बदले, और रोजगार नीति बदले न बदले कम से कम महंगाई तो रुके, और महंगाई रुके या न रुके नेताओं का भ्रष्टाचार तो रुके, कम से कम नेता तो सुधर जाए। तो नेता सुधरेगा तो व्यापारी सुधरेगा, व्यापारी सुधरेगा तो बाजार सुधरेगा, बाजार सुधरेगा तो रोजगार का भी संभावना बढ़ेगी, और रोजगार की संभावना बढ़ेगी तो शिक्षा की प्रासंगिकता भी बढ़ेगी। हम लोगों के बीच में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, आप भी जानते ही हैं। एक तो जो सक्रिय विद्यार्थी, जिनको हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, दाल में नमक की तरह से 100 में से 4-5 विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी परिषद, कोई एसएफआई, कोई आयसा, कोई एएसएफ, कोई युवा जनता, अलग अलग इलाके के अलग अलग महत्वपूर्ण विद्यार्थी संगठन होते हैं। उनमें से कुछ ऑल इंडिया होते हैं जिनका मैंने आपको नाम दिया, और कुछ स्थानीय भी होते हैं। बाकी 95% विद्यार्थी इनके साथ जुड़े तो होते हैं चुनाव के जरिए और कार्यक्रमों के जरिए, इनके सांस्कृतिक मंचों के जरिए, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे नहीं रहते। ये जो एक्टिविस्ट होते हैं इनको तो अपने कैंपस के सवाल तो रहते ही हैं, कैंपस के बाहर के सवालों पर भी बेचैन हो जाते हैं। हमारे समय में जो विद्यार्थी थे, उसमें जो कम्युनिस्ट विद्यार्थी थे, वो अक्सर उस समय वियतनाम से ज्यादा कंबोडिया में युद्ध चल रहा था, तो अक्सर वो कंबोडिया को लेकर प्रदर्शन करते थे। तो लोग कहते थे कि भाई हॉस्टल में कमरा मिल नहीं रहा है, उसको दिलाने की बजाय तुम कंबोडिया का प्रदर्शन कर रहे हो। तो फिर वो दूसरे दिन कंबोडिया के साथ साथ छात्रों के सवालों को, छात्राओं के सवालों को भी एक पर्चे का विषय बनाते थे। कुछ और थे जो देश के सवालों के बदले हॉस्टल पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। तो लोग कहते थे कि भाई कम से कम डबल सीटेड कमरा तो मिल गया है, बाहर जाकर के देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़के किराए के मकान में रहते हैं कि कमरे में 5-5 सोते हैं, तो तुम जरा बाहर के सवालों से भी जुड़ो। तो दोनों तरह की सीमाएं थी, बहुत ज्यादा आत्म केंद्रीयता और बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीयता। फिर भी वो होते थे दाल में नमक की तरह से। इनका ताना बाना होता था। जैसे बिहार में जब गोली चली 18 मार्च को, तो हम जो छात्र सक्रिय थे दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू के, उनको रात में डिनर टेबल पर टेलीविजन देखते देखते खबर मिली। हम लोगों ने तुरंत तय किया कि अब रात में ही हम लोग मीटिंग करेंगे इसके विरोध में। क्यों? क्योंकि पटना में जो छात्र संगठन सक्रिय थे, हम में से उनका कई से संबंध था, एसएफआई वालों का, एएसएफ वालों का, विद्यार्थी परिषद वालों का, हमारे जैसे लोगों का, समाजवादी युवजन सभा वालों से, ये लालू नीतीश वगैरह से, ये रामजतन सिन्हा, नरेंद्र सिंह वगैरह से। तो हम लोगों का ये जो ताना बाना होता है, अदृश्य नेटवर्क ये काम करता है, और इसमें मदद फिर पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलती है। ये खुला रहस्य है कि जो राजनीतिक रुझान वाले विद्यार्थी संगठन होते हैं, वो कसम तो खाते हैं विद्यार्थी एकता की, लेकिन असल में तो उनका मामला
अपने मातृदल पितृदल से रहता है और उनको उसमें संगठन में मदद भी मिलती है। आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के समय में ये लड़के जो अपनी फीस भी जमा करने के लिए दोस्तों से उधार मांगते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करते हैं। ये कहाँ से आता है? तो कोई बैंक उनको लोन थोड़ी देता है। अगर वो विद्यार्थी परिषद से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, अगर वो NSUI से लड़ रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर वो AISF से लड़ रहे हैं तो CPI, ये मदद मिलती है। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनकी जमानत कौन कराता है? हम लोग जब पकड़े जाते थे तो हम लोगों को जमानत कराने के लिए समाजवादी रुझान के वकील लोग आते थे। तो ये जो आपने पूछा कि आंदोलन की क्षमता कहाँ रहती है, जो एक्टिविस्ट होते हैं फिर इन्हीं में से कुछ लोग धीरे धीरे पार्टी होल टाइमर हो जाते हैं। पार्टी का टिकट मिल गया तो विधायक सांसद हो जाते हैं। हालांकि इधर बूढ़ों की बारात बड़ी लंबी है, इसलिए पार्टियों में छात्र राजनीति से निकले लोगों को जगह बहुत कम मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी अपवाद है कि इसने बहुत सारे लोगों को जो जेपी आंदोलन में थे, नवनिर्माण आंदोलन में थे, उनको गुंजाइश दी, वरना कांग्रेस में तो अभी उनका नंबर ही नहीं आता है, जो कि और बेचारे करें क्या, जाएं कहाँ। और कम्युनिस्ट पार्टी में चूंकि उनके पास वोट ही नहीं है तो नंबर आने के बाद भी वो नंबर नहीं लगता है। तो संसदवाद तो उनके लिए बहुत आसान रास्ता नहीं रहता, लेकिन एक करियर पॉलिटिक्स का भी होता है। जो आपने सवाल पूछा, रिश्ता क्या था गैर इंदिरावाद कांग्रेस के अंदर, गैर कांग्रेसवाद विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर, व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। हम लोगों की हालत द्रोणाचार्य के शिष्यों जैसी थी। उन्होंने सबको इकट्ठा किया था तो पूछा ये क्या देख रहे हो तुम? तो किसी ने कहा पेड़ देख रहे हैं, किसी ने कहा चिड़िया देख रहे हैं, किसी ने कहा चिड़िया की आंख देख रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण और उनके जो निकटतम अनुयायी थे, उसमें मंच का नाम था छात्र युवा संघर्षवाणी, वो तो चिड़िया की आंख देख रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन। हम लोग जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के पहले से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा और अन्यों की प्रेरणा से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से जुड़े थे, वो चिड़िया देख रहे थे कि इसका किसी तरह से हम लोग चिड़िया की आंख में निशाना न लगे, चिड़िया पर तीर लग जाए, गिरे, फिर हमारी चिड़िया वहां बैठाई जाए कि ये कांग्रेस ही गिरे, चाहे जयप्रकाश जी के बहाने गिरे, चाहे मोरारजी और अटल जी के नाम से गिरे। कुछ थे जो अपनी खाली विधायकी और सांसदी के चक्कर में कि हमको टिकट मिले, हमारा करियर बने, इस पार्टी की जय जय, उस पार्टी की भी जय जय। तो ये तीनों थे और इसमें पड़ला भारी हुआ सरकार बदलने वालों का, गैर कांग्रेसवाद वालों का और गैर इंदिरावाद वालों का। व्यवस्था परिवर्तन वालों का पड़ला इसलिए भी हल्का हो गया कि जब इमरजेंसी लग गई तो जयप्रकाश जी पर एक नैतिक दबाव आया कि आप तो दल विहीन जनतंत्र के जरिए सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें गांव सरकार और जिला सरकार की कल्पना थी, जनता कमेटियों की कल्पना थी, छात्र युवा संघर्ष समिति को कस्बे और गांव तक ले जाने की योजना थी। यहाँ तो लोकसभा ही खतरे में पड़ गई है, हम लोगों का आपस का बड़ा फासला है। तो जयप्रकाश जी जो दलहीन लोकतंत्र की बात कर रहे थे, उन्होंने एक नया दल बनाया, एक कुशल सेनापति की तरह से 2 कदम आगे जाने की बजाय 1 कदम पीछे हटाया और कहा कि लूली लंगड़ी जैसी सरकार थी, जैसी संसद थी, जैसा शासन था, कम से कम नागरिक अधिकार तो सुरक्षित थे, मीडिया की आजादी तो थी, चलो वहीं वापस लौटे, जिस गांव से हम चले थे नए गांव बसाने के लिए, चलो वापस उसी गांव में। और इसमें फिर उन्होंने सबको जोड़ा। लोग एतराज करते रहे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हमको इतना ही % वोट मिला, हमको उतना ही % वोट मिला। उनका वो सब माहौल बदल गया है, जनता बेचैन है। हाँ, आपकी एकता नहीं रही तो आप सड़ जाओगे जेलों में, जेल से बाहर आना चाहते हो तो हमारी सुनो। और जयप्रकाश जी के उस विवेक से राष्ट्रीय दलों की एकता हुई। और जयप्रकाश जी ने खुद भी कहा कि अभी तो गैर कांग्रेसवाद और गैर इंदिरावाद की जरूरत है। हाँ, आशा ये करते हैं कि जब ये जीत जाएंगे तो हमारी सुनेंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि उस समय जब नई सरकार बनाने की बात हुई तो जितने लोग जीत के आए थे जनता पार्टी के टिकट पर, उन सब लोगों को इकट्ठा करके राजघाट ले जाया गया था और वहां एक शपथ इन लोगों को दिलाई थी, किसने? जयप्रकाश जी और आचार्य कृपलानी ने, कि इनको शासन में आने के बाद ये कसम याद रहेगी। लेकिन राजनीति में अगर आपने कसम निभाई तो आपने राजनीति क्या की? रात गई बात गई, हम हो गए सांसद और वो हो गए मंत्री। अब जयप्रकाश जी कौन होते हैं? इनका कितना वोट है? किस बिरादरी के हैं?
इनकी बिरादरी का किस जगह पर बहुमत है? 5 सीट भी लोकसभा की जयप्रकाश जी के नाम पर नहीं मिलेगी। ऐसा अहंकार जाग गया। तो अहंकार जब जागता है तो विनाश पीछे पीछे आता है। जब भस्मासुर नहीं बचा अहंकार से, रावण नहीं बचा, दुर्योधन नहीं बचा, कंस नहीं बचा, तो ये जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हुए टेढ़े मेढ़े लोग, इनका अहंकार क्या बचता है? ये लोग 2.5 साल में इतिहास के कूड़ेदान के डिब्बे में फेंक दिए। लोगों ने कहा आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। इंदिरा जी ने भी घूम घूम के माफी मांगी कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम नादान लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते तो अच्छा रहता, चलिए क्षमा कीजिए और हमको। और लोगों ने एक तरह से क्षमा भाव अपनाया, क्योंकि ये खाली जयप्रकाश जी की अनदेखी नहीं हुई। गांव गांव में जिस पार्टी का जिस जमात का आदमी सांसद बन गया, उसने समझा हमारी सरकार बन गई। तो उसमें सबसे ज्यादा जीते लोग गैर दलित लोग। तो दलितों के साथ अत्याचार हुआ। ये जो अनिल जी जहां से आते हैं, इनके गांव एक है बेलछी, वहां कुछ दबंग जाति के लोगों ने छोटी सी बात पर हरिजनों के साथ अत्याचार किया, उनके घर जला दिए और फिर उनके आंसू पोंछने कोई पहुंचा नहीं। इंदिरा गांधी जी, बरसात का दिन था, हाथी पर चढ़ के गई और सारे देश के दलितों को संदेश गया कि जनता पार्टी की सरकार तो हमको बेघर करने वालों के साथ अकेला छोड़ देती है, इंदिरा गांधी देखो हाथी पर चढ़ के हमारी मदद के लिए आई। ऐसे ही और भी घटनाएं हुई। कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए कुछ जगहों पर, अलीगढ़ में और कुछ और जगहों पर। तो हुआ कि ये तो आरएसएस की सरकार बन गई। फिर कुछ जगहों पर नीतियों का लागू करना, जैसे शिक्षा में शिक्षा मंत्री उन्होंने एक ऐसे आदमी को बनाया जो दिन भर खाली बंगाल के विश्वविद्यालयों की पॉलिटिक्स में उलझा रहता था, प्रताप चंद्र चंदर। हम लोग इंतजार करते थे शास्त्री भवन के बाहर की कभी हम लोगों से भी मिल लीजिए। ये सरकार बंगाल की नहीं है, भारत की है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो वादा था शुरू करिए। फुर्सत नहीं थी इन लोगों को, और इन लोगों को लगा कि अब इंदिरा जी हमेशा के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। कांग्रेस भी टूट गई। आपको ये भी याद रखना है कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ और इंदिरा जी की सरकार खत्म हुई, खुद हारी, उनका लड़का हारा, प्रचार हो गया कि गाय भी हार गई, उसका बछड़ा भी हार गया। तो बहुत सारे इंदिरा जी के जो सपोर्टर थे वो टूट के दूसरी पार्टियों में गए, या ब्रह्मानंद रेड्डी के नेतृत्व में एक नई पार्टी बना ली उन्होंने और इंदिरा जी को ही बर्खास्त कर दिया। तो इस सब बिखराव से ऐसा लगा कि अब इंदिरा जी का सिक्का नहीं चलने वाला है। और ये बात है निरंकुशता की। जिस तरह से इमरजेंसी का कारण इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व था, वैसे ही जनता पार्टी की सरकार के पतन का कारण उसका भी प्रचंड बहुमत है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में स्वस्थ शासन के लिए सजग और समर्थ विपक्ष होना अच्छा रहता है। उससे टोका टोकी चलती रहती है, मनमानी नहीं होती है। खैर, ये दोनों इतिहास के 2 प्रसंग हो गए। हम लोग आज इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पर अपने सवाल लीजिए। मोनिका जी, आप एक सवाल रखिए, उसके बाद चूंकि समय की भी सीमा है, हम लोगों ने जो समय तय किया था, लेकिन एक सवाल मैं जरूर सर से पूछना चाहूंगा बाद में, थोड़ा एकेडमिक्स को लेके और आपातकाल एकेडमिया में, बौद्धिक जगत में, सिनेमा में, फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देता है। ये सवाल मैं बाद में पूछ लूंगा, उसके पहले आपका सवाल है, आप एक बार। बिल्कुल सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आज हमें एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इमरजेंसी के दौरान कैसा समय चल रहा था, तो इसमें महिलाओं का योगदान कितना था? जो ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ था, इसमें व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ वुमेन? क्योंकि हम जनरली एक कॉमन रोल ऑफ यूथ सुन लेते हैं, जनरल जो भी हमारे लीडर्स थे उनके बारे में सुन लेते हैं, बट एक महिला होने के नाते आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमें से ये विचार सुनने में मिल सकता है आपसे कि व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ वुमेन इन दिस मूवमेंट, और कोई क्या ऐसी महिला लीडर थी जो उभर कर आई थी इस पूरे मूवमेंट में? ये एक बहुत बड़ा योगदान था जयप्रकाश नारायण जी का कि उन्होंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के जरिए और ऐसे भी सामान्य उद्बोधन में महिला के प्रश्नों को प्रमुखता दी। बल्कि एक शिक्षक की तरह से, एक गुरु की तरह से, एक समाज सुधारक की तरह से, ये देखते हुए भी कि उनकी भीड़ में 95% युवा और पुरुष होते थे, युवाओं का बड़ा वो उनकी आलोचना और उनकी निंदा भी करते थे, उनको शर्मिंदा भी करते थे। वो सवाल उठाते थे
महिलाओं के साथ हमारी सामाजिक परंपराओं का और हमारी राजनीति का और हमारे शासन का एक भेदभावपूर्ण रुख, और वो मुद्दा उठाते थे दहेज का। जयप्रकाश जी के भाषण में 5% राजनीतिक सवाल होते थे, 95% तो वो सामाजिक सांस्कृतिक संकट की बात करते थे, क्योंकि उनकी संपूर्ण क्रांति का आशय यही था कि राजनीतिक क्रांति तो चाहिए ही, जिसमें सरकारें बदलेंगी, आर्थिक क्रांति भी चाहिए जिसमें कि वर्ग शक्ति का संतुलन बदलेगा, भूमिहीनों का, कारखाना मजदूरों का, छोटे किसानों का राज आएगा। लेकिन सांस्कृतिक क्रांति भी जरूरी है, आध्यात्मिक क्रांति भी जरूरी है। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब था स्त्री पुरुष संबंध, खास तौर पर विवाह की और परिवार की संस्था। और वो हाथ उठवाते थे दो बातों के लिए, जाति को लेके वो जनेऊ तुड़वाते थे और कहते थे कि एक धागे से आप इंसान को बदल देते हैं। धागा पहना है तो सवर्ण है, धागा नहीं पहना है तो वो किसी काम का नहीं है, साथ कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कुएं का पानी नहीं पिएगा, जूता पहन के नहीं चलेगा, छाता पहन लेके नहीं चलेगा। बोलो क्या चाहते हो, एकता चाहते हो या विखंडन चाहते हो? लोग चिल्लाते थे एकता चाहते हैं, तो कहा जनेऊ करोगे, जनेऊ तोड़ोगे। तमाम जो सवर्ण लड़के होते थे, बामन, ठाकुर, भूमियार, बनिया, ये 3 वर्ण को उपनयन का अधिकार है, शूद्रों को नहीं है। जयप्रकाश जी खुद इस बिरादरी थे, उसको भी अधिकार नहीं था। तो हिंदू महासभा के लोग दिल्ली से उड़ के आए, कहा कि हम तो आपके साथ हैं, आप तो बड़ा कमाल कर रहे हैं, एक ही गड़बड़ आप कर रहे हैं, जो जनेऊ का विरोध आप करते हैं। तो जयप्रकाश जी ने उनसे हंस के कहा कि मैं क्या करूं, आप जिस व्यवस्था के नायक हैं, हिंदू तो मैं हूं, लेकिन मुझे जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। अब बताइए, जब मुझे ही अधिकार नहीं है तो मैं इसकी वकालत कैसे करूं? सर का इंटरनेट कनेक्शन गया आई थिंक ना, लग रहा है। Thank you so much, sir. With this, we come towards an end of a deep-sighted discussion with Professor Anand Kumar. We at Academics for Nation would like to thank you for giving us your precious time and insights on different aspects of emergency, and we are truly honored to have you with us today, sir. I would also like to thank Professor Anil Soumitra and Dr. Arun Kumar for their continued support and cooperation for the successful event. Thank you so much, sir. Thank you, Arun, sir. Thank you so much.